Hello, dear Bacha Party. Jai Bharat, dear all the Vidyans. I hope you are doing well. So, in our last lecture, we discussed about the types of lysosome, GERL system, and the functions of lysosome, right? And today we are going for the next organelles, that is ribosomes. As we know that the ribosomes is the only organelles which are present in prokaryotic cell as well as in eukaryotic cell, because ribosomes are non-membranous structure, right? As we know that in case of prokaryotic cell, there is no membranous bound organelles, right? While in eukaryotic cell, that membranous bound organelles are present, like Golgi body, endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast in case of plant cell, right? But ribosomes is without membrane, and that is why ribosomes is present in both the cell, eukaryotic as well as prokaryotic cell. We also discuss about that the function of ribosomes is a protein synthesis, right? Okay, so let's start this organelle, that is ribosomes, in detail, right? So if we talk about the ribosome, the first time ribosomes was observed by a scientist Claudy and termed as microsome. Why it is called microsome? Because it is smallest organelles among all, right? So सारे ऑर्गेनल्स में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल जो था वो कौन था? वो रिबोसोम्स था, और इसलिए क्लाउडी गेव टर्म टू रिबोसोम्स अ माइक्रोसोम. क्या उसको बोलते थे? माइक्रोसोम. ओके, नाउ द टर्म रिबोसोम्स वाज गिवन बाय पैलाडे. सो रिबोसोम्स इज आल्सो नोन एज पैलाडे पार्टिकल, राइट? सो पैलाडे जो थे वो साइंटिस्ट थे, वो gave a ultra structure of ribosomes and he considered this ribosomes as a particles, और इसलिए उसको क्या बोलता है? पैलाडे पार्टिकल्स, राइट? ओके, सबसे पहले रिबोसोम्स टर्म जो है वो भी किसने दिया था? पैलाडे ने. ओके, दे वर रिपोर्टेड इन प्लांट सेल रूट ऑफ विसिया फाबा. सबसे पहले विसिया फाबा जो प्लांट सेल है उसके जो रूट्स हैं, वो रूट्स के सेल में सबसे पहले रिबोसोम्स जो है वो अगर हम बात करें तो किसने वो आइडेंटिफाइड किए थे? तो दो साइंटिस्ट थे, रॉबिन्सन एंड ब्राउन. अगेन सबसे पहले रिबोसोम्स ऑब्जर्व किसने किए थे? क्लाउडी ने, राइट? एंड ही गेव टर्म माइक्रोसोम बिकॉज इट वाज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स. सेकंड थिंग, टर्म रिबोसोम वाज गिवन बाय पैलाडे, राइट? And that is why it is also known as Palade particles. And in plant, the ribosomes was first observed by Robinson and Brown, right, in a root cell of Vicia faba plant. Okay. Now, ultrastructure of ribosome, that is also given by the Palade, right? And they are the smallest organelle of the cell and are without any membrane, right? So this is the organelles, the smallest organelles in the cell, and they are without any unit membrane, मतलब उसके आसपास कोई भी membrane नहीं है. और रिबोसोम जो है वो दोनों टाइप के सेल में है, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, नाउ इन प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स आर फ्री इन साइटोप्लाज्मा एंड आर नोन एज मोनोसोम. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, राइट? सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल there is no membranous bound organelles, right? So whatever the content is there, they are suspended in the cytoplasma. Same way ribosome also found in the cytoplasma, and that kind of ribosome is considered as a free ribosomes. उसको हम क्या बोलेंगे? Free ribosomes. So in prokaryotes, ribosomes are free in cytoplasma and are known as monosomes. Single है, that is why it is known as a monosomes. Okay. In eukaryotes, रिबोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक, मतलब फ्री रिबोसोम्स. अगर देखिए हम यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो एक चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान से याद रखनी है, कंसिडर दिस स्क्रीन एज अ साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल, ठीक है? ओके, अब रिबोसोम्स जो वो कहाँ पे हो सकते हैं? हम बात करें किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की. हम किसकी बात करें? प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है? चलिए, यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनल बना रहा हूँ. दिस ऑर्गेनल इज नथिंग बट द माइटोकॉन्ड्रिया. ये कौन सा ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? एंड सपोजिंग दैट हियर वी हैव वन अदर ऑर्गेनल्स विच इज फाउंड इन द प्लांट सेल. ये किसमें मिलता है? प्लांट सेल में. और ये कौन सा ऑर्गेनल है? इट इज नथिंग बट द क्लोरोप्लास्ट, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ठीक है? ओके, अब अगर हम
बात करें यूकैरियोटिक सेल में, और मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल। अगर मैंने क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाया होता तो वो क्या हो जाता, एनिमल सेल। लेकिन दोनों है कैसे, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है। ओके, अब तीसरा एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, और वो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये स्ट्रक्चर भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज नथिंग बट द सिस्टर्नी, ठीक है। अब यहां पे अगर हम रिबोसोम की बात करें कि रिबोसोम जो है वो एक तो ये कि ऐसे साइटोप्लाज्मा में ऐसे रिबोसोम्स हैं, राइट, दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्मा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्री रिबोसोम्स। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रिबोसोम्स। दूसरा, रिबोसोम्स जो है वो अगर सिस्टर्नी की सरफेस पे है, देन दैट काइंड ऑफ रिबोसोम्स इज नोन एज बाउंड रिबोसोम। उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड रिबोसोम। ये जो है ये कैसे रिबोसोम्स है, दे आर फ्री रिबोसोम्स। कैसे रिबोसोम्स है, फ्री रिबोसोम्स इफ दे आर सस्पेंडेड इनटू द साइटोप्लाज्मा। इफ दे आर बाउंड विद एनी ऑर्गेनल्स विद द सरफेस, और वो हम पढ़ चुके हैं किसमें, ईआर में। ईआर में जो सिस्टर्नी जो था उसके साथ रिबोसोम अटैच थे विद वन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, और वो ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या था, रिबोफोरिन। क्या नाम था, रिबोफोरिन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बाउंड रिबोसोम। इसके अलावा रिबोसोम कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनल रिबोसोम। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल्स राइबोसोम। तो तीन टाइप के राइबोसोम जो है वो हो सकते हैं, लेकिन किसकी बात करें हम, यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में तो रिबोसोम जो किसमें होंगे, साइटोप्लाज्मिक ही होंगे, सारे साइटोप्लाज्मा में ही है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में रिबोसोम्स आर ऑफ थ्री टाइप। वन इज साइटोप्लाज्मिक रिबोसोम्स व्हिच इज फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्मा। सेकंड वन इज अ बाउंड रिबोसोम्स व्हिच इज फाउंड अटैच्ड टू अ सरफेस ऑफ एनी ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल ईआर, राइट। एंड third type of ribosomes found inside the organelles. Third type of ribosomes found inside the organelles. For example, mitochondria and chloroplast. As we know that the mitochondria is related with the cellular respiration, so it requires huge amount of enzyme. And same way chloroplast is related with the photosynthesis, that is also required huge amount of enzyme. और इसलिए उनके पास खुद का ही क्या है, उसके पास रिबोसोम्स है, और उसके साथ साथ उसके पास खुद का डीएनए भी है, ठीक है। और वो डीएनए जो है वो कौन से फॉर्म में होगा, डीएनए जो है वो यहां पे होगा ऐसे फॉर्म में, प्लाज्मिड फॉर्म में। खुद के पास खुद का डीएनए भी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड, और रिबोसोम्स भी है। तो ये दोनों ऑर्गेनल जो है वो, उसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो खुद के प्रोटीन खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। ओके, अब ये तीनों टाइप के रिबोसोम्स किस में हो सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल में हो सकते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यही डायग्राम चलेगा, लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा, ठीक है। ओके, अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जो फ्री रिबोसोम्स है विच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, एंड बाउंड रिबोसोम्स विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑर्गेनल, ये दोनों जो रिबोसोम्स जो हैं दे आर यूकैरियोटिक रिबोसोम्स। ये जो रिबोसोम्स है वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक रिबोसोम्स। और यूकैरियोटिक रिबोसोम्स मतलब कैसे होंगे, ATS, और उसके दो सब यूनिट होंगे, कौन कौन से, 60S एंड 40S। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स के अंदर जो रिबोसोम्स है विच इज नोन एज ऑर्गेनल रिबोसोम्स, वो कैसे रिबोसोम है, दे आर प्रोकैरियोटिक रिबोसोम। याद रखना, यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स हो सकते हैं, तो आंसर होगा यस। कहां पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए एनिमल सेल तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो सिर्फ क्या आंसर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर प्लांट सेल पूछा है तो दोनों में क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स जो है वो होंगे। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। इन प्रोकैरियोट्स रिबोसोम्स आर फ्री इन साइटोप्लाज्मा एंड आर नोन एज मोनोसोम, while in case of eukaryotic cell ribosomes are cytoplasmic, means free in a cytoplasma, as well as bound which is found on the surface of organelles, for example ER। और वो अटैचमेंट किससे हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन, और वो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा है, रिबोफोरिन। वो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा है, रिबोफोरिन, वो हम पढ़ चुके हैं। एज वेल एज इट इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड द ऑर्गेनल, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिबोसोम्स हैं दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे हम इसको, माइटोरिबोसोम्स। क्या बोलेंगे हम इसको, माइटोरिबोसोम्स। एंड दोज हु आर फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ प्लास्टिड, सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिडोरिबोसोम्स। क्या बोलेंगे हम इसको, प्लास्टिडोरिबोसोम्स। लेकिन ये दोनों माइटोकॉन्ड्रियल रिबोसोम्स एज वेल एज प्लास्टिडोरिबोसोम्स, दे आर बेसिकली अ प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं।
रिबोसोम्स आर मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन। रिबोसोम्स जो है उसका रॉ मटेरियल क्या है, rRNA एंड प्रोटीन, ठीक है। rRNA एंड प्रोटीन, ये RNA जो है उसके तीन टाइप है, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड rRNA, ठीक है। तो रिबोसोम्स किससे बने हैं, rRNA प्लस प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। ओके, रिबोसोमल प्रोटीन आर बेसिक, मतलब रिबोसोम्स के हम ये बोल सकते हैं कि रिबोसोम्स जो है वो जिससे बने हैं वो प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन कैसे हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। वो प्रोटीन जो कैसे हैं, नेचर वाइज दे आर बेसिक, ठीक है। ओके, नाउ ओरिजिन ऑफ रिबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स इज साइटोप्लाज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ओरिजिन ऑफ रिबोसोम्स, रिबोसोम्स डेवलप कहां से हुए, तो डेवलप वहां से होंगे जहां पे क्या होगा, आरएनए, और जहां पे क्या बनेगा, प्रोटीन। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस जैसा कोई वहां पे कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, राइट। तो वहां पे सारी चीजें कहां पे है, साइटोप्लाज्म में ही है, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द ओरिजिन ऑफ रिबोसोम इज व्हाट, साइटोप्लाज्मिक एरिया। कहां पे वो फॉर्म होंगे, साइटोप्लाज्मिक एरिया में। अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं तो उससे आपको शायद और ज्यादा डिटेल में जो है वो पता चलेगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, एक प्रोसेस हो रही है, ये जो स्क्रीन है उसको आपको एज अ साइटोप्लाज्म कंसिडर करना है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिए ये जो है वो सपोज क्या हो गया, डीएनए, ठीक है। डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, एंड इन यूकैरियोटिक सेल दिस डीएनए फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये डीएनए जो है उसमें से तीन टाइप के आरएनए बनते हैं, मैसेंजर आरएनए, देन टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए, and the third one is rRNA means ribosomal RNA, right, which is one of the constituent of the ribosomes। तो ये तीनों RNA जो है वो किससे बनते हैं, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन से है, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसी से ये तीनों टाइप के RNA बनते हैं, मैसेंजर RNA, tRNA एंड rRNA, and that process is known as transcription, right, which required एंजाइम्स, ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, ट्रांसक्रिप्टेज। ऑल्दो इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम, इट इज नॉट अ सिंगल एंजाइम, वो हम डिटेल देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। ओके, तो डीएनए में से तीन आरएनए बनना, मैसेंजर आरएनए, rRNA, tRNA, राइट। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड whatever the raw material required for this process, it is present inside the nucleus। तो ये जो प्रोसेस है वो कहां पे हो रही है, न्यूक्लियस में। तो ये जो मैंने बनाया इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये बाहर का पार्ट जो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म। बाहर का पार्ट जो क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, अब अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो साइटोप्लाज्म जो है उसमें क्या है, तो साइटोप्लाज्म जो है उसमें रिबोसोम्स हैं। ये सपोज रिबोसोम्स है, ऐसा समझ लो, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट एंड द लार्जर सब यूनिट। और ये रिबोसोम जो वो कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। यहां पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, रिबोसोम जो है उसके खुद के स्ट्रक्चर में भी प्रोटीन है और रिबोसोम्स खुद भी प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो रिबोसोम्स जो है वो कहां पे है, साइटोप्लाज्म में, वेदर इट इज अ फ्री, वेदर इट इज अ बाउंड और वेदर इट इज अ ऑर्गेनल, तीनों है कहां पे, साइटोप्लाज्मिक रीजन में ही है। तो वो तीनों क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो प्रोटीन कहां पे है, प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में है, और आरएनए जो है, rRNA जो है वो कहां पे है, rRNA जो है वो न्यूक्लियस में। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। अब ये दोनों मतलब rRNA जब बाहर आ जाएगा, इट विल बाइंड विद द प्रोटीन एंड देन इट फॉर्म व्हाट, रिबोसोम्स। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोटिक सेल की। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस है ही नहीं, सारी चीजें कहां पे है, साइटोप्लाज्म में। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ओरिजिन ऑफ रिबोसोम्स इज साइटोप्लाज्मिक, व्हाइल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल the origin of ribosomes is cytoplasmic nucleolar, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या बनेगा, प्रोटीन, न्यूक्लियस में क्या बनेगा, rRNA। ओके, देखिए वापस ये पॉइंट देखते हैं, origin of ribosomes in prokaryotes is cytoplasmic and in eukaryotes it is cytoplasmic nucleolar because rRNA is synthesized in nucleus and protein in cytoplasm। तो यूकैरियोटिक सेल में अगर आपको पूछा जाए कि origin of ribosome is what, in eukaryotic cell it is cytoplasmic nucleolar, right? In case of prokaryotic only cytoplasmic। okay, I hope कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। Ribosomes are spherical and the diameter of ribosomes is 23 angstrom approx,
Each ribosomes is made up of two subunit called larger subunit and smaller subunit. दो सबयूनिट है, कौन कौन से? लार्जर एंड स्मॉलर सबयूनिट. चलिए ये डायग्राम जो है वो हम रिमूव करते हैं. अब हम बात कर रहे हैं दो सबयूनिट की. ठीक है, ये सपोज है दिस इज नथिंग बट द स्मॉलर सबयूनिट, और यहां से ये सपोज ऐसे ये बीच में टनल होगा, दिस इज द लार्जर सबयूनिट. तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ये जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है, तो उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होगा? 40s, और लार्जर सब यूनिट का कितना है? 60s, एंड टुगेदर दे आर 80s. है या ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की. अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल होता तो स्मॉलर सब यूनिट के साथ कितना आता? 30s, और लार्जर सब यूनिट कितना आता? 50s. टुगेदर इट बिकम 70s. याद रखना ये S क्या है? S इज अ स्वेडबर्ग, राइट? इट इज अ यूनिट. It shows sedimentation coefficient of rRNA. जब हम सेल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन बना के, पर सारे ऑर्गेनल्स जो डिस्ट्रॉय होंगे. ठीक है, फिर ग्रेजुअली जो है वो ऑर्गेनल्स जो है वो टेस्ट ट्यूब की बॉटम में आएंगे. सपोज आपके पास कोई एक कांच की बोतल है, वो कांच की बोतल में आप ले रहे हो पानी. ठीक है, वो फिर वो पानी के बाद उसके अंदर आप डाल रहे हो कंकर, फिर आप छोटी सैंड डाल रहे हो, उसके बाद आप मिट्टी डाल रहे हो, और उसके बाद जो है वो आप ऐसे समझो और छोटी मिट्टी जो डाल रहे हो, फिर आप उसको ऐसे हिला रहे हो और फिर ऐसे ही छोड़ दो. तो ग्रेजुअली क्या होगा? सेडिमेंटेशन होगा. ठीक है, तो वो जो सेडिमेंटेशन रेट है उसके बेसिस पे ये 40s ये क्या है? इट इज अ सेडिमेंटेशन रेट. ठीक है, और वो किसका होता है? आरआरएनए का. 40s, 60s, एंड टुगेदर अगर ये दोनों सब यूनिट इकट्ठे हुए तो वो जल्दी बैठेगा, दैट इज 80s. लेकिन याद रखना टोटल नहीं करना है. ठीक है, चलिए. सो रिबोसोम्स आर स्फेरिकल, और रिबोसोम्स जो हैं उसके क्या होंगे? दे हैव टू सब यूनिट, वन इज लार्जर सब यूनिट एंड द अदर वन इज स्मॉलर सब यूनिट. ठीक है, यहाँ पे ये लार्जर सब यूनिट है, ऊपर वाला कौन सा है? स्मॉलर सब यूनिट. ओके, नाउ दिस टू सब यूनिट असेंबल ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. यहाँ पे अगर ये दोनों असेंबल हो चुके हैं तो उसका मतलब ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है शुरू हो चुकी है. ठीक है, अदरवाइज वो कैसे होंगे? डिसोसिएट होंगे. और ये सारी चीजें जो हैं वो डिपेंडेंट किसके ऊपर हैं? वेदर दे रिमेन सेपरेट और डिसोसिएट. ठीक है, सेपरेट या फिर एसोसिएट, ये किसके ऊपर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम Mg+2 जो है उसकी इफेक्ट बहुत है. अगर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर से कम हुआ तो ये डिसोसिएट होंगे. अगर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 हुआ तो वो एसोसिएट होंगे. अगर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर से ज्यादा हुआ तो ऐसे बहुत सारे चेन बनाएंगे. ठीक है, तो तीन कंडीशन मैंने की, डिटेल में देखते हैं. ये पॉइंट जो याद रखो, magnesium ion concentration of 0.001 molar favors ribosomal assembly. ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम तीन कंडीशन बना रहे हैं. सपोज ऐसा कंडीशन है 0.001 मोलर. ठीक है, अब दूसरा कंडीशन जो है वो देखते हैं 0.001 मोलर जो है उससे कैसा है कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इससे ज़्यादा है. ठीक है, और तीसरा 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? इससे कम है या ना? मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इज इक्वल टू 0.001 मोलर. तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में ये सपोज स्मॉलर सब यूनिट है और उसके साथ ये नीचे जो है दैट कंटेन्स अ टनल यूनिट, ये जो है लार्जेस्ट सब यूनिट 0.001 मोलर पे ऐसा होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये असेंबली. अब कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीशियम का 0.001 मोलर से कैसा है? ज़्यादा. उस कंडीशन में क्या होगा? ऐसे स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट एक हुआ, फिर ये स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट, ऐसे दो रिबोसोम जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा. अगर ऐसे दो रिबोसोम से एक दूसरे के नज़दीक आए देन दे फॉर्म डाइमर. क्या फॉर्म करेंगे? वो डाइमर. ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर से कम हुआ तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये दोनों जो सब यूनिट है दैट विल रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे. तो 0.1 पे 0.001 मोलर पे असेंबली. अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो और रिबोसोम्स अटैच होंगे एंड फॉर्म अ चेन. अभी मैंने डाइमर बनाया है, लेकिन अगर ऐसा चेन फॉर्म हुआ दैट इज नोन एज पॉलीरिबोसोम्स. ओके, अगर उससे कम हुआ तो क्या होगा? डिसोसिएट होंगे. दोनों यूनिट जो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. चलिए,
तो Mg+2 ion concentration of 0.001 molar favors the assembly of the ribosomal unit. Concentration more than this favor dimer formation. अगर concentration इससे ज़्यादा हुआ तो वो dimer formation करेगा. And less than causes dissociation of ribosomal unit. अगर उससे कम होगा तो वो कैसा हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा. तो एसोसिएट करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैग्नीशियम जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन सही रहना चाहिए, तभी क्या होगा? असेंबली होगा, और असेंबली होगा तभी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो पॉसिबल है. ऐसा क्यों? वो नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं. डाइमर जो है अगर वो यूकैरियोटिक सेल का हुआ तो एटीएस, ठीक है. अब देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सपोज टेस्ट ट्यूब में ये एक ही रिबोसोम्स, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट दोनों एक साथ में है, एक ही रिबोसोम्स है, ठीक है. तो उसका जो सेडिमेंटेशन होगा, और इसके बदले ऐसे दो होंगे तो उसका सेडिमेंटेशन जो होगा वो कैसा होगा? फास्ट होगा. हाँ या ना? ओके. तो यहां पे देखिए कि ये जो है इसका सेडिमेंटेशन रेट कितना है? एटीएस. अगर उसके दोनों पार्ट्स के अगर मैं सेडिमेंटेशन रेट जो काउंट करूं तो स्मॉलर के कितने हैं? 40s और लार्जर के कितने हैं? 60s. हाँ या ना? लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ अटैच है तो उसका सेडिमेंटेशन रेट कितना है? 80s. ठीक है. लेकिन अगर ऐसे एटीएस वाले अगर दो है तो सेडिमेंटेशन रेट जो है वो टोटल कितना हो जाएगा? 120s. कितना हो जाएगा? 120s. अगर एटीएस तभी हो सकता है कि जब वो कैसा हो, वो कैसे रिबोसोम्स हो? वो यूकैरियोटिक रिबोसोम्स हो. तब डाइमर जो है उसका सेडिमेंटेशन कितना हो जाएगा? 120s. वो उसका सेडिमेंटेशन रेट हो जाएगा. लेकिन अगर सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है तो 70s, तो उसका मतलब क्या होगा? सेडिमेंटेशन रेट जो कितना हो जाएगा? 100s. लेकिन ये किसकी बात है? प्रोकैरियोटिक सेल की. ठीक है. ओके. चलिए अगर हम आगे बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनी रिबोसोम्स बिकम अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. दिस चेन ऑफ रिबोसोम्स इज नोन एज पॉलीरिबोसोम्स. ठीक है. डिटेल में देखते हैं, उससे पहले ये पार्ट जो है वो हम निकाल देते हैं. ठीक है. चलिए तो यहाँ पे वापस मैं रिबोसोम बना रहा हूँ. देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है वो क्या है? इट इज अ स्मॉलर सब यूनिट, और ऐसे नीचे जो है वो क्या होगा? लार्जर सब यूनिट. लार्जर सब यूनिट में एक टनल है. ठीक है. ये टनल जो है वो आपको याद रखना है, वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. अगर मैं ये स्मॉलर सब यूनिट की बात करूं, ऊपर वाला वो क्या है? स्मॉलर सब यूनिट. अगर आप उसका साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू जो है वो कुछ इस तरीके है, राइट, दैट कंटेन्स वन क्लफ्ट या फिर ग्रूव इन इट. तो ये जो अगर साइड से अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा है. ठीक है. तो अगर आप देख रहे हैं ये सपोज क्या है? ये स्मॉलर सब यूनिट है. अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये देखिए आपको ग्रू दिखा वो. अच्छा, अब वो जो ग्रू है उसके अंदर फिक्स हो जाएगा क्या? मैसेंजर आरएनए, जिसमें क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन. तो अगर आप उसको ऐसे देखेंगे तो ये एक रिबोसोम्स हुआ, ये सरफेस. ठीक है. उसके अंदर क्या है? मैसेंजर आरएनए. तो मैसेंजर आरएनए अटैच कहाँ पे हुआ? मैसेंजर आरएनए जो अटैच होगा वो किसके साथ होगा? स्मॉलर सब यूनिट से. ठीक है. तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे एक लॉन्ग मैसेंजर आरएनए उसके अंदर के ग्रूव में एक फिक्स हो चुका है. मैसेंजर आरएनए किसके साथ अटैच होगा? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रिबोसोम्स. जब मैसेंजर आरएनए वंस दे अटैच विद द ग्रूव ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रिबोसोम, देन आफ्टर लार्जर सब यूनिट अटैच टू इट. ठीक है. तो लार्जर सब यूनिट जो फिर उसके बाद जो है अटैच हो जाएगा, तो वो कंप्लीट स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के बीच में हम ये बोल सकते हैं कि क्या आ जाएगा? मैसेंजर आरएनए जो आ जाएगा. समझ में आ रहा है? ओके. तो ये मैंने एक रिबोसोम्स बनाया. लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे दो रिबोसोम्स हुए तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर ऐसे दो रिबोसोम्स हैं तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? डाइमर. लेकिन अगर ऐसे दो से ज्यादा अगर रिबोसोम्स जो हैं वो ऐसे डेवलप हुआ है, देन दैट फॉर्म अ चेन. उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम, या फिर उसको हम सिंपली बोल सकते हैं पॉलीजोम. पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम. वापस ये देखते हैं. मैनी रिबोसोम्स become attached to messenger RNA during protein synthesis. This chain of ribosomes is known as polyribosomes or polysomes or ergosomes. तीनों याद रखना. polyribosomes बोल सकते हैं, polysomes बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? ergosomes बोल सकते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, ये मैसेंजर आरएनए मैंने लिखा तो सही, ये जो है वो क्या है? इट इज नथिंग बट द मैसेंजर आरएनए. लेकिन ये मैसेंजर आरएनए फॉर्म कहाँ पे हुआ था? ये मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ था न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक सेल में. हाँ या ना? कौन सी प्रोसेस से हुआ था? अभी हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से हुआ था. फिर वो मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्मा में से न्यूक्लियोलर पोर के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा? साइटोप्लाज्मा में. अगेन मैसेंजर आरएनए फॉर्म कहाँ पे हुआ था? न्यूक्लियस पे. वहां से वो मैसेंजर आरएनए जो है
वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्मा में से कहाँ पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्मा में, क्योंकि रिबोसोम्स कहाँ पे है, साइटोप्लाज्मा में। फिर वो स्मॉलर सब यूनिट के साथ क्या हो जाएगा, अटैच। फिर उसको कौन कवर करेगा, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे रिबोसोम्स जो वो अटैच हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए के साथ, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पोलीरिबोसोम्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जब ये पोलीजोम्स या फिर पोलीरिबोसोम्स या फिर डाइमर भी फॉर्म होता है, तब दो सक्सेसिव जो रिबोसोम्स जो है उसमें जो गैप है दैट इज अराउंड 90 न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट द मोनोमर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो हम मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो आप 10th में पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े तो हम बायोमोलिक्यूल में वापस देखेंगे, ठीक है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर जो है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मोनोमर क्या है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड। एंड आरएनए का मोनोमर कौन सा है, रिबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो वो जो मोनोमर है वो कितने होंगे, 90 मोनोमर जो है वो होंगे बिटवीन द टू सक्सेसिव मतलब 1 2 3, तो 1 2 सक्सेसिव हुआ, 2 3 जो है वो सक्सेसिव हुआ, 3 4 जो है वो सक्सेसिव हुआ, राइट। उसके बीच में कितना गैप होगा, अराउंड 90 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिबोसोम्स जो उसके सब यूनिट देखे, उसका हमने सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट जो हम एस बोलते हैं, स्वेडबर्ग, वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट है वो हमने देखा। और इसके अलावा कब एसोसिएशन होगा, कब डिसोसिएशन होगा, मैग्नीशियम का कौन सा कॉन्सेंट्रेशन जो चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरा प्रोटीन सिंथेसिस जो इसके बेस पे है, राइट, वो हम आगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बच्चा पढ़े आपको ये लेक्चर जो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, मेरी टीम से पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।